सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ेस ऑफ आरबीसीज के बारे में। सो जो फर्स्ट डिजीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनीमिया। Now what is anemia? Anemia is decrease in RBC's mass, or you can say they decrease in HB content. Decrease in RBC's mass or decrease in hemoglobin content. Now we're going to discuss about the classification of anemia. Generally इसकी दो classification है. First one is based on the etiology and second one is based on the morphology. So first क्या है? etiology के basis पे है और second है morphology के basis पे. तो first हम discuss करेंगे morphology के basis पे. So classification based on morphology. So generally three types of anemia is there on the basis of morphology. First one क्या है? First is the microcytic hypochromic anemia. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? दैट इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. और थर्ड जो है दैट इज मैक्रोसिटिक hyperchromic anemia. Now why we have divided it into three things, the microcytic, normocytic, macrocytic. See, microcytic is because the size of RBCs here is less than 7 micron and the volume is less than 80 femtoliters. And hypochromic is because here normally the color index is 8 to 1, 0.8 to 1 is the normal color index, but here it is less than 0.8. That's why we called it as a microcytic hypochromic anemia. Second, this is normocytic and normochromic because here the size and volume is normal as well as the color index is also normal. In case of macrocytic, the size of RBCs is more than 7 microns and or you can say it is more than 9. Okay? And यहाँ पे जो volume है वो क्या है? That is more than 100 femtoliters. And hyperchromic because यहाँ पे जो color index है that is more than 1. Now what are the examples under microcytic? So for that just remember one mnemonic, that is SITA. S is for sideroblastic anemia. I is for iron deficient anemia. T is for thalassemia. And A is for anemia of chronic disease. This is anemia of chronic disease. Okay. अब what are the various example of normocytic anemia? So normocytic के examples कौन कौन सी हैं? The first example is anemia due to renal disease.
ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसकी, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. सो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इट कैन बी नॉर्मोसिटिक और इट कैन बी माइक्रोसिटिक. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया? Here you know it is what? That is megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia. सेकेंड जो यहाँ एग्जाम्पल है वो क्या है? दैट इज एनीमिया ड्यू टू लिवर डिजीजेस. एनीमिया ड्यू टू liver diseases. And third क्या है? That is due to hypothyroidism. So इसको आप कैसे याद रख सकते हो? MDH के साथ. ठीक है, diseases of liver, D is for diseases of liver, M is for megaloblastic anemia, and H is for hypothyroidism. So this is the classification of anemia based on morphology. Now we're going to discuss about the classification of anemia on the basis of etiology. Classification on basis of etiology. It is also divided into 3 categories. First is due to decreased production of RBCs. Due to decreased production of RBCs. इसको हम क्या बोलते हैं? It is hypoproliferative anemia. Hypoproliferative anemia. Second is chronic blood loss की वजह से. क्रॉनिक ब्लड लॉस कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई फीमेल आ रही है, उसको मेंस्ट्रुएशन काफ़ी टाइम तक चल रहा है, तो इन दैट केस देयर कैन बी एनीमिया इन दैट फीमेल. कोई भी क्रॉनिक डिजीज जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है. तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? दैट इज ड्यू टू मोर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. नाउ इसकी एग्जाम्पल क्या है? लाइक aplastic anemia. Aplastic anemia. So this is the classification based on the etiology. Now we are going to discuss about second disease of RBC disorder, that is hemolysis. Now hemolytic disease of RBC. So generally hemolytic disease of RBCs are of 2 types depending upon the destruction, whether the destruction is intravascular or what, extravascular. If it is intravascular means this hemolysis is occurring inside the vessel. Extravascular means ये hemolysis बाहर हो रही है, जैसे कि for example in spleen. So that is extravascular. So intravascular और extravascular में how you can differentiate? See, this is a vessel. इस vessels में ये क्या है? RBCs इज देयर. ठीक है, अब अगर हम इस RBC को डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या होगा? जितना भी हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे आ जाएगा? अब ब्लड वेसल के अंदर. तो
क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीमोग्लोबिन है यहाँ पे, मोर हीमोग्लोबिन विल बी देयर, सो फर्स्ट प्रेजेंटेशन क्या होगा, दैट इज हीमोग्लोबिनीमिया। सेकंड क्या होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है ब्लड में, तो ये हीमोग्लोबिन यूरिन के ज़रिए भी बाहर आएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है। थर्ड थिंग अब क्या होगी, ये हीमोग्लोबिन जाके डिपॉजिट कर सकती है एज अ पिगमेंट इन द ऑर्गन्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोसिड्रियोसिस। हीमोसिड्रियोसिस क्या है, ये एक पिगमेंट होता है दैट इज ड्यू टू द लाइसिस ऑफ द आरबीसीज। सेकेंड, अब ये पिगमेंट यूरिन में भी आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोसिडरीयूरिया। अब अगर देयर इज अ लाइसिस ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन ज़्यादा है ब्लड में, तो क्या होगा, हेप्टोग्लोबुलिन जनरली बाइंड करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन तो बहुत ज़्यादा है बट उतने हेप्टोग्लोबुलिन्स नहीं है ना, तो जो हेप्टोग्लोबुलिन्स हैं उनका काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो हेप्टोग्लोबुलिन्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। और एज देयर इज अ लाइसिस ऑफ द आरबीसीज, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, जॉन्डिस। ओके। अब यही सेम फीचर्स, अब क्या एक्स्ट्रावैस्कुलर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, डू यू थिंक देयर इज हीमोग्लोबिनीमिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हीमोग्लोबिनूरिया प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकता है, हीमोसिड्रियोसिस सेम, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हीमोसिड्रीयूरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पे एक्स्ट्रावैस्कुलर के केस में जो हेप्टोग्लोबुलिन्स है ना, यहाँ पे इंट्रावैस्कुलर में कम हो रहे थे बट यहाँ पे वो क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, यहाँ पे हेप्टोग्लोबुलिन्स कम नहीं होंगे, नॉर्मल रहेगी इनकी वैल्यू। और जॉन्डिस यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इन दोनों में गॉल स्टोन्स भी प्रेजेंट होंगे, गॉल स्टोन्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। गॉल स्टोन्स क्यों हो गए, बिकॉज ज़्यादा हीमोलिसिस हो रही है तो ज़्यादा एचबी है। ठीक है। और एचबी ज़्यादा है तो क्या होगा, बिलीरुबिन भी ज़्यादा बनेगा, और वो बिलीरुबिन जाके बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करके वहाँ पे क्या करेगा, पिगमेंटेड स्टोन्स बनाना शुरू कर देगा, तो दैट्स वाई आपको गॉल स्टोन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट हीमोलिसिस। नाउ हीमोलिसिस जो है ना, उसके दो रीजंस हो सकते हैं, दैट कैन बी ड्यू टू इंट्रिंसिक डिफेक्ट और दैट कैन बी ड्यू टू एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स की वजह से हो सकती है और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स की वजह से हो सकती है। इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्या, इंट्रिंसिक डिफेक्ट मतलब आरबीसीज का कोई डिफेक्ट, सी दिस इज आरबीसी, दिस इज द आरबीसीज। अब आरबीसीज का क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है कि इसकी मेम्ब्रेन का कोई डिफेक्ट हो, तो फर्स्ट क्या है, आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है ये जो हीमोग्लोबिन है इसका कोई डिफेक्ट हो सकता है, हीमोग्लोबिन डिफेक्ट हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है इंट्रिंसिक डिफेक्ट, दैट इज एंजाइम डिफेक्ट। सो आपने क्या याद रखना है, तीन इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स हैं, फर्स्ट इज आरबीसीज की मेम्ब्रेन का डिफेक्ट, सेकंड हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट एंड थर्ड इज एंजाइम का डिफेक्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स के बारे में। सो सी,
ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, और यहाँ पे है ये आरबीसी। हमने बोला एक्सट्रिंसिक में मेनली क्या होता है, एंटीबॉडीज़ की वजह से है। तो इस ये आरबीसी के अगेंस्ट क्या बनी, कोई एंटीबॉडी बनी। अब एंटीबॉडी के दो रीजन्स होते हैं, वन इज FAB फैब रीजन एंड अदर इज FC रीजन। और ये क्या है, हमारा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज पे FC रीजन के लिए होते हैं रिसेप्टर्स, दिस इज FC region के लिए receptors. Now this FC region will bind to this receptor that are present on the macrophage, और ये macrophage in turns क्या करेगा, ये इस RBC को जाके किल कर देगा, और अगर RBC किल हुआ तो क्या होगा, hemolysis हो जाएगी। Now what are the various examples of extrinsic defect? फर्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। दूसरी यहाँ पे एग्जाम्पल है दैट इज माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स। वहाँ पे आरबीसीज जब जाएंगे स्मॉल ब्लड वेसल्स में तो वहाँ पे हिमोलिसिस हो जाएगी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रिंसिक हिमोलिसिस। नाउ अब आरबीसी डिफेक्ट की वजह से क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट इज द हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, सेकेंड विल बी PNH। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के बारे में। So what is this hereditary spherocytosis? Hereditary का मतलब क्या है, ये कुछ जेनेटिक एसोसिएशन है, तो ये जनरली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। स्फेरोसाइट्स मतलब यहाँ पे जो आरबीसीज है ना वो स्फेरिकल हो जाएंगे, दे विल बी स्फेरिकल इन शेप, ओके। नाउ we will discuss about the पैथोजेनेसिस। अब ये जो आरबीसीज हैं ये स्फेरिकल क्यों हुए, मैंने आपको बोला था कि हमारा जो आरबीसी है ना इसमें इसकी मेम्ब्रेन को बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से हैं, आरबीसी मेम्ब्रेन कंटेन 4 प्रोटीन्स। क्या क्या प्रोटीन्स हैं वो, फर्स्ट वन इज स्पेक्ट्रिन, second is N-chirin, third one is pallidin, and fourth one is band 3 protein, ठीक है, ये 4 प्रोटीन्स होते हैं। और अगर कोई पूछे स्पेक्ट्रिन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। पर अगर हम बात करते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की तो उसमें क्या होता है, मेनली ये जो N-chirin है ना इसकी म्यूटेशन हो जाती है, देयर इज अ म्यूटेशन ऑफ N-chirin, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो देयर इज इन HS देयर इज डेफिशिएंसी of N-chirin, ओके। बट अगर कोई आपसे पूछे कि HS की सिवियरिटी के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है तो योर आंसर मस्ट बी स्पेक्ट्रिन। अगर ये स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन है अगर ये कम हुआ तो उतनी ही उसकी सिवियरिटी होगी, ठीक है। सो सिवियरिटी के लिए स्पेक्ट्रिन है। और मेन कल्प्रिट क्या है, N-chirin की म्यूटेशन। नाउ अब अगर इसमें म्यूटेशन हो गई, आरबीसी की जो प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन होगी, अब क्या होगा, सी पैथोजेनेसिस
अब ये प्रोटीन नहीं है, तो जनरली जो RBCs थे बाइकॉनकेव थे बिकॉज ऑफ दीज प्रोटीन। अब बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ एन कायरिन ये जो RBCs हैं फर्स्ट इनकी शेप लूज हो गई और अब ये क्या बन गए, स्फेरिकल इन शेप, दे बिकम स्फेरिकल इन शेप। दूसरा, अगर ये बाइकॉनकेव थे तो ये क्या थे, फ्लेक्सिबल। अब ये बाइकॉनकेव नहीं रहे तो ये क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी लॉस्ट हो जाएगी, तो दे विल बी रिजिड। तो ये जो RBCs हैं दे विल नॉट बी एबल टू पास from splenic sinusoids। तो अगर ये स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स को पास नहीं कर पाएंगे तो अब क्या होगा, अब स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज आएंगे और मैक्रोफेज इन RBCs को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो मैक्रोफेज विल कम एंड destroy these RBCs, ओके। एंड इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ व्हाट, इंट्रावैस्कुलर और एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस। दिस इज द एक्स्ट्रावैस्कुलर। व्हाई इट इज एक्स्ट्रावैस्कुलर, बिकॉज ये स्प्लीन में हो रही है, इट इज अ एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस। गॉट इट? नाउ when you're gonna do a peripheral smear for the diagnosis of HCS, तो आपको क्या मिलेगा? For the diagnosis आप क्या करोगे? You're gonna do peripheral blood smear or you can say CBC आप करोगे और CBC। तो आपको क्या देखने को मिलेगा इस पेशेंट की रिपोर्ट में? फर्स्ट थिंग, हेमोलिसिस है ये, तो जो RBCs हैं उनका काउंट कम हो जाएगा। दूसरा, RBC में अगर हेमोलिसिस है तो ऑब्वियसली HB भी तो कम होगा, HB कम हो जाएगा। अब क्या WBC जो है उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नॉट। सो WBCs क्या रहेंगे आपके, नॉर्मल रहेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो वो भी क्या रहेंगे, नॉर्मल, प्लेटलेट्स भी नॉर्मल रहेंगे। अब आपको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्फेरोसाइट्स, ठीक है। दूसरा, हमने RBC इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था ना, तो उसमें भी ऑब्वियसली चेंज आएगा। तो क्या देखने को मिलेगा वहाँ पे, अगर हम बात करें MCV की तो क्या होगा, MCV it will be decreased। दूसरा, अगर हम बात करें MCH की, उसको क्या होगा, वो क्या रहेगा, वो नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। थर्ड थिंग दैट इज MCHC क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। सो these are some changes that you're gonna see on CBC and on the peripheral blood smear। यहाँ पे and आएगा, this is and, okay। अब C, अगर हम रेक्टिक काउंट की बात करें तो उसको क्या होगा, रेक्टिक काउंट को वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, बिकॉज हेमोलिसिस हो रही है तो बोन मैरो को सिग्नल जाएंगे तो ज़्यादा रेटिकुलोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे। सी वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस रेक्टिक काउंट, कोई भी हेमोलिसिस है, एनी काइंड ऑफ हेमोलिसिस, वहाँ पे रेक्टिक काउंट जर्नली बढ़ जाएंगे। रेटिकुलोसाइट्स ऑलवेज इंक्रीज इन हेमोलिसिस, बट अगर देर इज़ एनी काइंड ऑफ हाइपोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर तो जस्ट रिमेंबर दैट रेटिकुलोसाइट्स काउंट विल डिक्रीज, ओके। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। नाउ अब ये तो हमारा फर्स्ट था। दूसरा, हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस, दैट इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट।
दिस इज अ सेकेंड टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट. नाउ सी, जो नॉर्मल आरबीसीज है ना, अगर हम उनको 0.9% NaCl में डालेंगे ना, तो दे आर आइसोटोनिक टू दिस सोल्यूशन. उन आरबीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस 0.9% NaCl में रखोगे. पर अगर हम बात करें स्फेरोसाइट्स की, तो इनमें क्या होगा, जर्नली ये जो स्फेरोसाइट्स होते हैं ना, ये ज़्यादा ऑस्मोटिक फ्रेजाइल होते हैं. ठीक है, अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है ना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में, तो ये क्या होंगे, इनकी हिमोलिसिस हो जाएंगी. सी, अगर मैंने ये कंसंट्रेशन पहले 0.9 थी NaCl की, अब मैंने इसको कम कर दिया 0.5% NaCl, तो नॉर्मल आरबीसीज को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन दो मैंने इसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम कर दी है. पर अगर मैं इन स्फेरोसाइट्स को इस NaCl में 0.5% NaCl में रखूँगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हिमोलिसिस देखने को मिलेगी. तो ये ज़्यादा ऑस्मोटिक फ्रेजाइल हैं, दे आर मोर ऑस्मोटिक फ्रेजाइल. इवन छोटा सा भी कंसंट्रेशन चेंज हुआ ना, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उसको. तो हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है, थर्ड जो टेस्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. This is an investigation of choice for osmotic fragility test. Okay. Now, how you wanna treat this patient? For the treatment, generally we will go with the elective splenectomy. क्या करेंगे हम? Splenectomy. बिकॉज यहाँ पे स्प्लीन ही तो मेन कल्प्रिट है ना, उसी की वजह से हिमोलिसिस हो रहा है. अगर आप स्प्लीन ही रिमूव कर दोगे तो हिमोलिसिस नहीं होगा. ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में पेशेंट को कुछ नहीं होगा अगर आप स्प्लीन रिमूव कर देते हो. बट इसका एक कॉम्प्लिकेशन है. अब वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, जब आप स्प्लीन रिमूव करोगे ना, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस. Okay, so this is all about the treatment. Now, ये जो स्फेरोसाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं ना, ये आपको और कंडीशंस में भी देखने को मिल सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट तो हमने पढ़ा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, दूसरा ये आपको मिल सकते हैं इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ, second anemia that we are gonna discuss is paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Second is nocturnal hemoglobinuria. Okay. Now, what is this PNH? This is also a acquired disease. ये क्या है? This is a acquired disease. So यहाँ पे क्या होगा मेनली, you know, हमारे जो नॉर्मल RBC है ना, उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. सी, यहाँ पे एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं पिगा जीन. ये पिगा जीन क्या करेगा, दो GPI एंकर प्रोटीन्स बनाएगा. कौन कौन से प्रोटीन्स बनाएगा ये? फर्स्ट प्रोटीन जो ये बनाएगा वो है दैट इज DAF. नाउ ये DAF क्या होता है? दिस इज डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर. और दूसरा होता है मिरल. मिरल क्या होता है? इट इज मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रेक्टिकलाइसिस. इट इज मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रेक्टिकलाइसिस. अब डैफ के और मिरल का ना एक मार्कर होता है.
सो डैफ का मार्कर क्या है, दैट इज CD55 और मिरल का मार्कर क्या है, दैट इज CD59. ओके, सी मैंने बोला ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर नॉर्मल आरबीसी. अब इस नॉर्मल आरबीसी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है, दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द नॉर्मल आरबीसी. और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता कौन है, दैट ये दो प्रोटीन्स जो है ना, डैफ और मिरल, ये बनाते हैं. सो इनको मैं डी में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मिरल को एम में. सो दे आर व्हाट, दे आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग. ये आरबीसीज को किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं. अब अगर इस पिगा जीन में म्यूटेशन हो गई, इसमें क्या हो गई, म्यूटेशन, तो क्या ये डैफ या मिरल है ये बन पाएंगे, ऑब्वियसली इनकी सिंथेसिस नहीं होगी. तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है आरबीसीज के अराउंड, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो अब ये आरबीसीज में क्या हो जाएगी, हिमोलिसिस. और वो हिमोलिसिस कैसे होगी, बाय द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा. वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स आके आरबीसीज को ब्रेक कर देंगे, ठीक है. और हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, हिमोलिसिस. और ये हिमोलिसिस इंट्रावैस्कुलर होगी. सो जस्ट राइट डाउन क्या क्या होगा इसमें. सो पैथोजेनेसिस ऑफ पीएनएच, यहाँ पे हो रहा है पिगा जीन में म्यूटेशन, देयर इज अ म्यूटेशन इन पिगा जीन, जिसकी वजह से देयर इज डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ डैफ एंड मिरल. और अगर डैफ और मिरल कम बने तो क्या, देयर इज नो प्रोटेक्टिव कवरिंग, नो प्रोटेक्टिव कवरिंग. एंड कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है तो ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, दे विल अटैक RBCs and cause lysis of RBCs. और lysis of RBCs को हम क्या बोलते हैं, हिमोलिसिस. ये कौन सी वाली है, इंट्रावैस्कुलर, बिकॉज ये ब्लड वेसल के अंदर हो रही है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ PNH. नाउ see, when you wanna do the peripheral blood smear or you can say CBC आप करोगे तो क्या देखोगे, जो RBC है ना वो डिक्रीज हो जाएंगे. इवन इन दिस केस WBC भी क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. और प्लेटलेट्स भी डिक्रीज होंगे. तो PNH के केस में हमें क्या देखने को मिला, PNH के केस में हमें पैनसाइटोपिनिया देखने को मिला. पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया मीन्स सारे सेल्स ही कम हैं, ठीक है. ये पैनसाइटोपिनिया के साथ और क्या देखने को मिलेगा, दैट इज हिपैटोस्प्लीनोमेगैली. सो पैनसाइटोपिनिया विद हिपैटोस्प्लीनोमेगैली इज अ typical feature of PNH. So just put it star. Okay, they can ask you this question. अब अगर ये PNH में, इस PNH पेशेंट को PNH था, पिगा जीन में म्यूटेशन हुई. अब अगर ये म्यूटेशन और ज़्यादा बढ़ती गई, इफ़ म्यूटेशन इज़ इंक्रीजिंग, तो क्या होगा उसकी वजह से, PNH आगे चल के कॉज करेगा क्या, दैट इज AML.
If the mutation keep on increasing, PNH can cause AML. It can also cause myelodysplastic syndrome. It can also cause aplastic anemia. ओके, सो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इन केस ऑफ इंक्रीज सिवियरिटी ऑफ PNH. अगर ज़्यादा सीवियर हुआ तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी. ठीक है, नाउ सी, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? इसको नाउ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ PNH क्या है? दैट इज हैम्स टेस्ट, या इसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिफाइड सीरम टेस्ट. सीरम टेस्ट. Generally, see, whenever there is a decrease in pH, जब यहाँ पे एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमने बोला था मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? हिमोलिसिस करवा देगा. ठीक है, सो ये टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ PNH. ठीक है, another test that we can use here, and this test is a confirmatory test. What is the name of this test? That is flare flow cytometry. Okay, this is flare flow cytometry. So this is all about PNH. Thank you.